Hello people, welcome to this new video and of course welcome to the channel. So guys, herein we are again proceeding with the same chapter that we discussed in the previous lesson, as you can see on the screen. So that is on the rights in the Indian Constitution. So of course it's related to the fundamental rights. Now before I begin, I would just like to tell you that if these videos are helpful to you in your preparation or in your way of approaching the subject, or even if you are a school student, if they are somehow helpful to you, please do like the videos, do comment, do share, and do not forget to subscribe to the channel. Now if you see near my picture, you will also in the box, so you will also see the icon, this icon actually, which is on the t-shirt. So if you just click on that, you will automatically subscribe to the channel. You will not have to go to the home page and then subscribe, right? So you can just click and subscribe. Also, if you check the description box of this video once it's done, so what you do is that you will be directed to the playlist only, which is containing all the other NCERT videos, as well as I'll be posting the links of all the other playlists which are created by far. So it will be easier for you to navigate, okay? And then you can of course check whatever videos are useful to you. So and other than that, you can also follow me on my other social media profiles. You can follow me on Facebook, Twitter or Instagram. You can just contact me via any other link, or you can also follow me on Unacademy platform. So therein, if you just check, you will find my name in the UPSC CSE category, and you will find that in the very initial names itself. So there also, if you need, you can inbox me. They have an option. Otherwise, if you have to join my Telegram channel, that also you can do. So you will find all these links in the YouTube channel description, right? So there in Facebook, Insta, Twitter, Telegram, Unacademy, etc. all the links are there. So if you just check the channel description, you will find it out. चलो ठीक है, so अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, we'll proceed with this. और अगर आपको याद हो, हम bilingually lesson conduct करते हैं, तो हम दोनों काम ही करेंगे. तो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस NCERT, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये हम कर रहे थे. चैप्टर 1 मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया है. डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट. चैप्टर 2 का जो विच इज़ द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका हमने पहला पार्ट कल कर लिया. पहले पार्ट में हमने पढ़ा क्या क्या है, क्विकली रिवाइज करेंगे. थोड़ा सा इंट्रो देखा है हमने, राइट्स के इम्पोर्टेंस को समझा कि अगर हमारे पास अधिकार हैं तो उनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, किसी भी सिटीजन के जीवन में क्या महत्व है, ठीक है. उसके अलावा हमने राइट्स के इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक कॉन्सेप्ट को भी समझा जिसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, ठीक है. और फिर हम फाइनली आ गए फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर. तो हमारे भारत के संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उस पर भी हम आए. हमने थोड़ा सा अगेन उसका इंट्रोडक्शन देखा यहाँ पे. फिर हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर क्या होता है. व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एज वेल एज द फंडामेंटल rights. Then we did study a bit more about the fundamental rights, and we saw what are the fundamental rights in the Indian Constitution part 3, like part 3 of the Indian Constitution. तो हमने देखा कि हमने 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करी और राइट टू इक्वालिटी का थोड़ा सा डिटेल किया. ये सारा कवरेज था. अभी हमें स्टार्ट करना है. सो इफ यू विल सी हियर, इक्वालिटी इज डन, फ्रीडम हम शुरू करेंगे, ठीक है. तो राइट टू फ्रीडम यहाँ से देखते हैं. ओके, अब ये नाम है, इस राइट का जो नाम है यही आपको बताएगा क्या है फ्रीडम. मतलब आपको थोड़ी छूट मिल रही है. तो हर सिटीजन के पास वो अधिकार है, उस छूट का अधिकार है. लेकिन बात यहाँ ये होती है कि यहाँ पे हम किस तरह के छूट की बात कर रहे हैं. अगर सोसाइटी में हर इंसान को ऐसा छूट दे दिया जाए कि उसका जो मन करे वो करे, इफ एवरी सिटीजन इन द सोसाइटी इज गिवन अ राइट टू फ्रीडम of any kind of liberty or any kind of freedom, so that would be a kind of chaotic situation in the society. So basically, right to freedom, no doubt, is the most essential rights to democracy, because herein we did discuss about equality also. And when we say freedom, or you can say liberty, now this actually signifies freedom of thought, expression and action. So these certain kinds of freedoms are provided under right to freedom. Now, what is the significance here? Every person, हर इंसान या हर citizen will enjoy her freedom without threatening the freedom of others. तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रीडम देता है, इसको हमारा मौलिक अधिकार मानता है कि आपको फ्रीडम और लिबर्टी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, एक्शन की मिलनी चाहिए, लेकिन
अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते ना। सो द कंडीशन इज दैट हर इंसान उस फ्रीडम को इंजॉय करेगा तभी तक जब तक वो दूसरों के फ्रीडम को हर्ट नहीं कर रहा या थ्रेटन नहीं कर रहा, ठीक है। एंड ऑल्सो विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड अदर सिचुएशन, लॉ और अदर सिचुएशंस में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहा, दूसरे लोगों के राइट्स को थ्रेटन नहीं कर रहा। इन दैट केस द सिटीजन इज एबल टू इंजॉय द राइट टू फ्रीडम। ओके, इसी फ्रीडम के अंडर एक और बात होती है इस राइट की, जिसको हम कहते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हम फ्रीडम के ही अंदर चल रहे हैं। इस राइट में बेसिकली और इस अधिकार में बेसिकली बात क्या है कि किसी भी सिटीजन को कुछ चीज़ें डिनाई नहीं की जा सकती। हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिटीजन्स को कुछ चीज़ें हम नहीं डिनाई कर सकते, जैसे उनका जो अधिकार है जीने का और उनके पर्सनल लिबर्टी का, ये हम नहीं छीन सकते, ठीक है। और यहाँ पे जब हम वो फ्रीडम की बात करते हैं लाइफ के बारे में, तो दैट इज एक्चुअली एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। सो ऐसे किसी सिटीजन के लाइफ को डिनाई करने का कि नहीं उसको जीने का अधिकार नहीं है, ये हम कहने वाले कोई नहीं होते हैं। लॉ के अंडर अगर कुछ ऐसा प्रोसीजर्स है, किसी स्पेशल केस में वो चीज़ एप्लीकेबल है जहाँ वैसे सज़ा मिलती है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उस केस में ही सिर्फ वो लॉ के अंडर ही वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई होता है। अदरवाइज there cannot be any denial to any citizen of his or her life as well as personal liberty. Now, having said that कि हर इंसान को लाइफ और उनकी लिबर्टी की जो है छूट है, हमें ये भी ध्यान रखना होगा that no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest। क्योंकि जब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो अगर हम किसी को अरेस्ट, मतलब पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर ले रही है, पहली बात बिना ये बताए कि आपको किस बिना पर किस रीजन की वजह से, ठीक है, व्हाट इज अ ग्राउंड फॉर योर अरेस्ट, सो द पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड हैज टू बी टोल्ड द ग्राउंड्स ऑन विच द अरेस्ट इज टेकिंग प्लेस। सेकेंडली, अगर अरेस्ट हो रहा है, इफ द पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है, द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। So that person, if gets arrested, has the right to defend herself or himself by a lawyer of one's choice। अपने चॉइस के लॉयर से खुद को डिफेंड करने का अधिकार है उस इंसान के पास अगर उसको किसी भी रीजन की वजह से अरेस्ट किया जाता है। नाउ, जब आप मतलब पुलिस जब इंसान मतलब सिटीजन को अरेस्ट कर रही है, when that person is arrested, it becomes mandatory for the police to take that person to nearest magistrate within 24 hours। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, just do not forget that। These are the things what I call in my terms as like reading between the lines। यही समझना होता है, प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो समझना होगा पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर उस अरेस्ट किए हुए इंसान को किसी नज़दीक के मजिस्ट्रेट या जो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ले जाना है। Now this magistrate of course is not a part of police, so this magistrate is the one who decides whether the arrest is justified or not। It is not always important that if the police is arresting someone, that person, or you can say that arrest for that person is justified। So that thing, this justification has to be decided by the magistrate, और उस magistrate के पास 24 घंटे, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना है उस इंसान को। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और जजमेंट्स की, ठीक है, एक्चुअली ये जो राइट है ना आपका लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, तो इसका ना स्कोप जो है बहुत बड़ा है। इट हैज़ वेरी वास्ट स्कोप एंड द स्कोप ऑफ दिस राइट ऑल्सो गॉट एक्सपैंडेड बाय वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सो अलग अलग जजमेंट्स, हम तो बस एक कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी बहुत आगे मतलब इस चीज़ को क्लियर किया कि इस राइट के अंडर ये भी आता है दैट इट, और यू कैन से इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन होनी है, the right or you can say the life which will be free from exploitation, right to shelter, livelihood, ठीक है। और भी डिटेल्स हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वी विल ऑफ कोर्स कोलैबोरेट, अभी तो एनसीईआरटी का स्टफ है ये। सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स जिसके मतलब जो बियॉन्ड जो बोलते हैं ना, जो सिर्फ मेंशन है आर्टिकल में, उसके स्कोप को सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम क्या जुडिशरी का काम ही क्या होता है, दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये जो इंटरप्रिटेशन वाला काम है ना, ये जुडिशरी जब जजमेंट्स आती हैं तो वहाँ पर वो बताते हैं कि ठीक है इस राइट का स्कोप यहाँ पर भी है। अगर हम कह रहे हैं कि एक अच्छा लाइवलीहुड एक इंसान को नहीं मिल पा रहा है, तो उसका जो जीने का अधिकार है या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो कैसे जस्टिफाई हो पाएगी। एक अच्छा एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो उसको जो लाइवलीहुड है, उसको जो शेल्टर की ज़रूरत है, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो तो उसको मिलनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी तो चाहिए। सो देयरफॉर दिस हैज़ हैपेंड।
Then there is another term which has to be read, in the context of this article only, or you can say this right only, which is preventive detention. अभी हम right to freedom की ही बात कर रहे हैं. This is the second fundamental right that we are talking. The first one was right to equality that we did in the previous video. So right to freedom, और इसके अंडर में ये छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं. एक टर्म आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम में. अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली क्या है? देखो, एक अगर हम ऑर्डिनरी केस की बात करें, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट एन ऑर्डिनरी केस, अ जनरल सिनेरियो, व्हाट विल हैपन? देयर वुड बी अ रिपोर्ट दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस. ठीक है, सो द पुलिस वुड अरेस्ट दैट पर्सन. एक जनरल सिनेरियो होगा. सो रिपोर्टेडली अगर कोई इंसान कोई ऑफेंस कमिट करता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है. ये हो गया ऑर्डिनरी केस. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो. What are the exceptions? What will happen that the police will arrest that person out of just an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity. So पुलिस को सिर्फ ये लगेगा कि इस इंसान, और आप कह सकते हैं कि एक जो धारणा बना करके हम चलते हैं, या ऐसे कुछ रीजंस होंगे जो उनको लगेगा कि दिस पर्सन इज एंटी सोशल एलिमेंट. तो सोसाइटी को, समाज को, लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को खतरा ना हो, उस चीज़ से बचाने के लिए, और उनको लगे कि ये जो है ये किसी तरह के अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज है, भी अरेस्ट किया जा सकता है. अभी तक उसका ऑफेंस जो है वो ऐसा अभी प्रूव नहीं है कि वो कमिट हुआ है कि नहीं. ठीक है, बस उस डर से, उस खतरे से बचाने के लिए. एंड देन दैट पर्सन कुड बी इम्प्रिजन फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर. ठीक है, तो जो भी हमने अभी तक ऊपर डिस्कस करा, उसके बिना भी ये एक्सेप्शनल केस में होता है. दिस सिनेरियो इज बेसिकली व्हाट वी रेफर टू एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. अगर आप नाम देखेंगे, नाम से ही समझ आएगा, प्रिवेंशन. ठीक है ना, प्रिवेंट करते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए. तो किसी तरह का अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो जाए, उस चीज़ से बचाने के लिए, उस खतरे से रोकने के लिए हम ये डिटेंशन करते हैं. या फिर आप कह सकते हैं पुलिस अरेस्ट करके या डिटेन कर देती है लोगों को, मतलब जिनसे उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी को खतरा है. तो इफ गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, यहाँ थ्रेट वर्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. So if the government feels that a person can be a threat to law and order or threat to peace and security of nation, the person gets arrested or detained. ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब इस प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ 3 मंथ्स की ही हो सकती है, और 3 महीने के बाद उस केस को एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने लाया जाता है. सो दैट केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड आफ्टर 3 मंथ्स फॉर रिव्यू. ठीक है, रिव्यू. अच्छा, अब अगर हम इस प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, तो एक तरफ तो ठीक है, ये सोसाइटी को किसी भी तरह के अनलॉफुल एक्टिविटी, किसी भी तरीके का हार्म, किसी भी तरीके के रिस्क से बचा सकता है अगर पुलिस उन तरह के सस्पेक्ट्स जो हैं उनको अरेस्ट कर लेती है. ठीक है, बट दिस कैन ऑल्सो बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो दिस ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स डू नॉट जस्ट गिव द सिटीजन्स देयर राइट्स. ये एक तरह का कुछ आप बोल सकते हैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, या फिर एक कंट्रोल है कि गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती. तो देयर इज अ नीड ऑफ ग्रेटर सेफगार्ड्स बेसिकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ताकि किसी भी तरह का मिसयूज गवर्नमेंट ना करे. तो गवर्नमेंट की तरफ से इस क्लॉज को यूज करने के लिए, मतलब ताकि कोई मिसयूज ना हो सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें और प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेटर सेफगार्ड्स की ज़रूरत है. If it also talk a bit more about some other rights which can be considered under right to freedom. So the first important thing to understand is that right to freedom is not an absolute right. Again, we have discussed in so many examples. आप अपने मर्जी से सिर्फ जो चाहे वो नहीं कर सकते, saying that I have the right to freedom. ठीक है, आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते. अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इफ़ यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दैट यू कैन express anything that you want to, but that anything also has to, that dignity has to be maintained. You cannot threaten other person by your expression. You cannot say anything, any abuses or something like that. तो वो सब आपको ध्यान रखना है. So right to freedom is not, I'm very sorry, right to freedom is not absolute. Each right is subjected to restrictions which are imposed by the government. So this also you have to remember, that each right is subjected to restrictions imposed by the government. Now these restrictions might be misused by the administration, and this is what needs to be prevented.
अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एज आई जस्ट टोल्ड यू, तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लगा सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर पे ध्यान रखे, पीस, मोरालिटी। फिर अगर राइट टू असेंबल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये राइट टू असेंबल आपको पीसफुली एक्सरसाइज करना है, बिना किसी हथियार के। आप बोलेंगे मेरे पास तो राइट टू असेंबल है, वो फ्रीडम है, वो छूट है, हम भीड़ में कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, और आप अगर मारपीट पे उतर आएंगे, आपके पास हथियार होंगे, आप वायलेंस करेंगे, तो वो तो आपको नहीं परमिट होगा ना। सो देयरफॉर इवन इफ यू हैव सर्टेन फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम, you will also have certain restrictions which are imposed by the government, ठीक है, depending on the situation or scenario। अच्छा, अब है accused की बात, ठीक है, जिस पर है कि मतलब और आरोप लगा हुआ है। Now, the Constitution of India also ensures that the persons accused of various offences would also get sufficient protection। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई accuse है, किसी पर कुछ इल्ज़ाम है, ठीक है, तो मतलब बस उसके साथ तो इंसान कुछ भी कर, मतलब पुलिस कुछ भी कर ले, ऐसे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको भी प्रोटेक्शन देती है, सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। किसी पर किसी चीज का इल्जाम लग जाना उसको मुजरिम नहीं बना देता है। दिस इज व्हाट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। If someone is accused of some crime, that doesn't make that person a criminal. Majority of the scenario, that person is the criminal, but there is a situation or there can be a situation wherein that person might be innocent. So until and unless the court has told कि वो इंसान, उसने वो गलती करी है या गलत काम किया है, ठीक है, वो जो ऑफेंस है, जब तक कोर्ट नहीं बोलती है कि वो पर्सन अक्यूज्ड है, तब तक आप उसको गिल्टी नहीं मान सकते। कोर्ट का काम है गिल्टी करार करना, ठीक है। अगेन अनदर थिंग, हाउ दे आर गिवन ऑल्सो प्रोटेक्शन। A person accused of any crime should get adequate opportunity to defend oneself। अगर किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा है, अक्यूज्ड है, तो उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और मतलब मिलना होता है, ज़रूरी है, दिस इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, मिलना है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 राइट्स विच इंश्योर्स कि कोर्ट में ट्रायल जो होता है, लोगों को जब, ठीक है, बुला के ये सब पूछताछ वगैरह की चीज़ें हैं, फेयर ट्रायल हो, ठीक है। कैसे? What are those 3 rights? 1, that अगर एक ही ऑफेंस को उस इंसान ने मल्टीपल टाइम्स किया है, तो मोर देन वंस पनिशमेंट उस इंसान को नहीं मिलेगी। द सेम पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस विल नॉट गेट पनिश्ड मोर देन वंस, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। बैक डेट में जाकर किसी भी एक्शन को हम उस हिसाब से इलीगल नहीं करार कर सकते, ये कोई लॉ नहीं कर सकता। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। सो दीज आर द 3 राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट फेयर ट्रायल टेक्स प्लेस इन द कोर्ट्स. So we are done with right to freedom. We will move with right against exploitation, the third fundamental right given in part 3 of the Indian Constitution. So basically when we say about exploitation, ठीक है, किस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे एक आपका बहुत important जो कंसिडर किया जाता है and which is also prohibited under the Constitution, जो अलाउड नहीं है, ठीक है, जिस पर रोक है, बेगार या फिर forced labor without payment। तो ज़बरदस्ती लोगों से काम कराना और पैसे नहीं देना। सेकेंडली, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स यूजिंग देम एज स्लेव्स, ठीक है, तो लोगों का यू कैन से बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, सो दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और उनको फिर स्लेव की तरह उनसे काम लेना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट बॉन्डेड लेबर, सो काफ़ी जगह फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर वॉज एग्जिस्टिंग, तो अब ये क्राइम है और ये पनिशेबल है, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड। Also, the Constitution forbids employment of children below 14 years of age in dangerous jobs, ठीक है, अगर वो फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, तो 14 साल से कम के बच्चे अगर काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि वो भी एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, दैट इज नॉट अलाउड। Another is, and of course when we see the different articles, we will see the broader aspect of right against exploitation. These are just the introductory portion as per the NCERT. Next we go is right to freedom of religion, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस राइट को दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? देखो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या मतलब है उसका, व्हाट डज दैट सिग्निफाई? दैट सिग्निफाइज दैट पीपल हैव देयर राइट टू से, ठीक है, पुट फॉरवर्ड थिंग्स और टेक देयर ओन डिसीजंस। ऐसे कोई
आप बोलेंगे कि मतलब वो नहीं है कि एक ही चीज आपको, जो आपको डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर, ठीक है, टिरनी नहीं है. सो एवरीवन हियर इन अ डेमोक्रेसी इंजॉयज, और अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, एंड वी नो दैट in India diverse religion like exist, so people belonging to different religions, they do reside here in India. So India is a very diverse country like that. So everyone here in our country enjoys the right to follow the religion of his or her choice. आपको कौन सा धर्म मानना है वो आपकी मर्जी है, ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और अगर इस अधिकार का हनन होता है आप सीधे कोर्ट में अपील कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, उसी के अंडर का छोटा सा वो है सेगमेंट. आपको किस किस तरह की फ्रीडम बेसिकली ओवरऑल रफली दी जाती है इस राइट के अंडर. आप अपने मर्जी का रिलीजन, धर्म चूज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ कंसायंस, ठीक है, बेसिकली व्हाट डज दिस मीन, दैट इफ यू हैव टू चूज अ रिलीजन और यू डू नॉट हैव टू चूज अ रिलीजन, आपको एक धर्म चूज करना है या नहीं करना है. बहुत लोग होते हैं जो धार्मिक नहीं होते, जो धर्म में नहीं विश्वास करते, which is perfectly fine as per the constitution, because you have the freedom of conscience. Whatever your conscience says, you have to choose a religion or do not choose a religion is your wish. Also freedom to profess, follow, propagate any religion. But again, when you have certain freedom, you also have certain limitations. So again we will have to remember that this is not unlimited right. आपको बोल दिया गया तो आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हो. There are situations wherein the government can impose restrictions to protect public order, morality and health. So these are three keywords: public order, morality and health, जो आपको याद रखना है, because prelims में this can be a question that what are the grounds, or correct incorrect में they can ask you that these are the following grounds on which restrictions can be imposed, ठीक है, in context of this freedom of religion. तो क्या क्या ग्राउंड्स है जिस पे गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स, एंड दिस हैज हैपेंड. फॉर एग्जाम्पल इन पास्ट द गवर्नमेंट हैज बैन्ड प्रैक्टिसेस लाइक सती, बाइगमी और ह्यूमन सैक्रिफाइस. सो द थिंग इज कि धर्म के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विच इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और पीपल्स डिग्निटी और हेल्थ एक्सेट्रा, तो वो आप नहीं कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट वहाँ पे रोक लगाती है, गवर्नमेंट का अधिकार है वहाँ पे इंटरफेयर करना. एंड सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस और सच काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड कैन नॉट बी अपोज्ड. इसका आप कोई अपोज नहीं कर सकते उसको. यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट एंड से दैट द गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग. नो, दैट कैन नॉट हैपन, राइट? ओके. Then another point under freedom of religion is that sometimes it becomes the reason for political controversy also. क्योंकि सबके अपने अपने रिलीजन है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोफेस करने की कोशिश करेंगे, एंड देन politically that becomes an issue. For example, if you talk about the guarantee of right to propagate one's religion, because the constitution allows you to do that you can propagate your own religion. So it also in some way means that you have the right to persuade other people to convert from one religion to another, because propagate is like आप लोगों में बात फैला रहे हो, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, परसुएट भी कर सकते हो कि इस रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ. बट सो अगेन यू विल हैव लिमिटेशन. लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो सब तो अपनी मर्जी से करेंगे, तो अगेन देयर विल बी इश्यूज. सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन्स. आपको प्रोपोगेट करने का परमिशन है, यू हैव, और राइट है बेसिकली, नॉट परमिशन. यू हैव द राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन, बट you cannot persuade people or you cannot force them, ठीक है. So the constitution does not allow forcible conversions. Only you have the right to spread information. Propagate करना है तो आप information दो दूसरों को about your own religion, and then if people get attracted to your religion, that is fine. You cannot force them as such for doing that. Also, if you talk about religion equality in the terms of government or state, वो क्या follow करते हैं? So we know that there is no official religion in India as such, ठीक है. इंडिया में ये लाइन आपको अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना है, इंडिया का कोई अपना official religion नहीं है. India is a multi-religious country. Now the government must extend equal treatment to different religions. अलग अलग जो धर्म हैं, गवर्नमेंट को उनको equal treatment ही देना है. Government is not supposed to favor any particular religion, and the government cannot discriminate on the basis of religion in giving employment. So जो public employment होगा, government employment होगा, government religion के basis पे किसी तरह का discrimination
नहीं कर सकती, ठीक है। सो गवर्नमेंट का अपना यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर भी नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर रन बाय द स्टेट, वो गवर्नमेंट के ही अंडर हो जाएगा। दे विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। वो किसी भी तरह के पर्टिकुलर रिलीजन को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कैन डू, लेकिन गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसी भी एक रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर धर्म के एजुकेशन को आगे प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ना तो किसी कोई मतलब पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन्स को वो फेवर कर सकते हैं। दे हैव टू बी न्यूट्रल, ठीक है। इक्वल थिंग हैज़ टू बी, और इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ पोजिशन एंड राइट हैज़ टू बी गिवन टू द पीपल और टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स by the state, of course. Also, if you talk about what is the objective of these provisions, ठीक है, ये जो religion से related हमने इतने provisions देखे constitution के, उसका objective क्या है, purpose क्या है? Basically, see, we know that ठीक है, India is a secular country, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई official religion नहीं है. So, if we have to sustain and nurture the principle of secularism, we will have to have certain such provisions which we already have in our constitution. फिर भी कहीं कहीं पर misuse होता है, which shouldn't happen. Next, the right which we will cover is the cultural and educational rights. Now, talking about the diversity, so one diversity is of the religious diversity that we have already seen, one type. What are the other types of diversity that does exist in India? Because we know, again, India is a diverse country. So, Constitution of India also believes that this diversity only, in different aspects is our own strength. यही हमारी ताकत है. So, we also have to maintain the right of those minorities so that they can maintain their culture. For example, what kind of, you can say, minorities are there? Religious, linguistic, cultural. So, ये भी again, this becomes an important point for prelims, ये वाला, that MCQ या prelims के हिसाब से, that not only the religious minorities are included, in this right, that their culture needs to be preserved, the linguistic minority and the cultural minority also have to be taken care of. All the minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions. ठीक है, उनको वो अधिकार होता है कि वो अपने educational institutions को set up कर सके, preserving their own culture. वो अपने culture को preserve करने के लिए अपने educational जो वो particular minority basically उस particular area में है, context में है, तो एक बहुत छोटा पोर्शन है जो उस पर्टिकुलर रिलीजन को या लैंग्वेज को या कल्चर को फॉलो कर रहा है, बाकी लोग जो है वो अलग फॉलो कर रहे हैं. तो ऐसे में उनकी मजबूरी नहीं हो जाती है. दे डू नॉट हैव एनी बर्डन एज सच और एनी समथिंग विच वुड फोर्स देम कि आपको मेजॉरिटी के हिसाब से करना है. नो, यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व योर ओन कल्चर. यू कैन हैव योर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ऑल्सो if government has to aid certain such minority institutions, they will have to do it irrespective of any discrimination. वो किसी भी तरीके जब वो aid grant करेंगे गवर्नमेंट, वो माइनॉरिटी के हिसाब से नहीं देखेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी रन कर रही है तो इसको aid नहीं देना है, या ये वाली माइनॉरिटी कर रही है तो इसको नहीं देना है, उसको दे देना. This discrimination the government cannot conduct. Another right would be right to constitutional remedies. So although I have not completed it, but ठीक है, I guess यहाँ से हमें अगले में शुरू करना चाहिए, because this will take a longer time. Why I am saying this? Because right to constitutional remedies समझने के बाद they have also told about the DPSPs, Directive Principles of State Policy, and then a few relations between fundamental rights and DPSPs. So as you see here, right to constitutional remedies का तो मैं अगर समझा भी दूँ, so you will have the details of certain writs. ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, and this will take little time. So I think rather than making this particular video very long, I would again make third part of it and I'll conclude the chapter. So we'll be done with the remaining topics there. So I hope this session was useful to you. आपको कुछ चीज़ें समझ आई, and अगर कोई doubt है तो comment section is always there. Any other media platform, social media platform is also there. Do contact me for any other query, the genuine queries please. So hi hello का जवाब मैं नहीं दूंगी. Don't expect me to answer your hi and hello. That is not possible. कोई genuine doubts है, I'm always there. तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा क्योंकि आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारे बिल्कुल डायरेक्टली. या जहाँ पे चैनल में आपको आइकन दिख रहा है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, वहीं पे आप डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हैं सब्सक्राइब. सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल. आई विल बी मीटिंग यू इन अनदर वीडियो एंड विल कंडक्ट द चैप्टर ऑन द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो सी यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.